ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں کی آسمان میں عید کی 2 راتیں ہوتی ہیں، جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہیں۔ فرشتوں کی 2 عیدیں شب بارات اور لیلۃ القدر ہیں، اور مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی عیدیں دن کو ہوتی ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بعد ذلک فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو محترم حضرات، آئیے آج ہم شب بارات کی فضیلت کو سماعت کرتے ہوئے اس رات کی فضیلت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ شب بارات بڑی ہی متبرک رحمتوں بھری رات ہے۔ یہ دوزخ سے نجات کی رات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگ جانو اس شب بارات کے وہ 15ویں شب شعبان کی ہے کہ اس میں اترتے ہیں میں فرشتے رحمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رات عبادت کرتے ہیں۔ یہ بڑی بزرگی والی رات ہے۔ جو اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کو ہر روز قیامت تک ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نصف یعنی آدھی شعبان کی رات جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں اٹھ کر آپ کو گھر میں تلاش کرنا شروع کیا تو میرا ہاتھ آپ کے مبارک قدموں پر جا پڑا۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے، چنانچہ میں نے آپ کی دعا سن لی۔ جو دعا آپ کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ یا اللہ، میرے ظاہر و باطن نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا، میں تیرے انعامات کا معترف ہوں، بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، تیری رحمت کے ساتھ تیرے عذاب کا پناہ کا طالب ہوں، تیری امن کے ساتھ تیرے غضب کی پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حقہ تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی۔ جب آپ سجدے سے اٹھتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول گئے ہیں۔ میں آپ کی طرف دیکھی اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں کی آسمان میں عید کی 2 راتیں ہوتی ہیں، جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہیں۔ فرشتوں کی 2 عیدیں شب بارات اور لیلۃ القدر ہیں، اور مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی عیدیں دن کو ہوتی ہیں۔ فرشتے ان کی عیدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے مناتے ہیں، اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے عبادت کرنے کے بجائے ناچ گانوں میں اپنا تمام وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کی جتنی ہو سکے عبادت کریں، تسبیح و تحلیل کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ میں فرشتوں کی جو عیدیں ہیں وہ ہمارے لیے بھی بڑی متبرک ہیں۔ ملائکہ کی پہلی عید کو شب بارات کی رات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسری عید کو شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان راتوں کو تمام ملائکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی عام انسان زندگی بھر میں ایک بار بھی اس طرح خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبھی گناہ معاف کرتے ہوئے جنت میں داخل کر دیں۔ مگر ہم لوگ عید کے دن عبادت کرنا تو دور، گناہوں میں اس طرح ملوث ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی نہیں اور خوف بھی باقی نہیں رہتا۔ نہ اس دن نمازیں ہی وقت پر پڑھی جاتی ہیں، نہ ذکر میں دل لگتا ہے، مسجدیں ویران نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا تحفہ دیا، بجائے اس کا شکر ادا کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کے اور اس کو راضی کرنے کے بجائے ہم لہو لعب میں اپنا دن گزارتے ہیں۔ اللہ ان گناہوں سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں شب بارات کی تمام نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں اور گناہوں کی بخشش کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, सूरह दकान की इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। हमारे हुक्म से इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है, यानी शब बारात में जुमला अहकाम रिस्क तमाम साल के हवादिस तकसीम कर दिए जाते हैं और हर काम के फरिश्तों को इनकी तामील पर मतईन कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, तुम जानती हो इस रात में इस साल का हर पैदा होने वाला और मरने वाले शख्स का नाम लिखा जाता है और उन लोगों के अमाल इनकी रब की बारगाह में पेश होते हैं और उनका रिस्क उतारा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस रात बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर दोज़खियों को नजात हासिल होती है। इस रात को अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर तक दुनियावी आसमान पर नुज़ुल फरमा कर इरशाद फरमाता है कोई इस रात मुझसे बख्शिश तलब करने में कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई इस रात मुझसे रोज़ी तलब करे कि मैं उसे रोज़ी अता कर दूँ, है कोई इस रात मुझसे शिफा तलब करे कि मैं उसे शिफाए कामिला अता करूं, है कोई अपने गुनाहों की तौबा करे कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूं, नेज़ जिस किसी बंदे की जो भी हाजत है मैं उसे पूरा करूं, मगर मैं उन लोगों की दुआएं कबूल नहीं करता जो शराब पर इसरार करते हैं, जो जिना पर इसरार करते हैं, जो बेशर्मी और बेहयाई कामों पर इसरार करते हैं, जो खूनी रिश्तों से बग़ैर कोई शरई अज़र के ख़ता ताल्लुक़ करते हैं, जो वालिदैन की नाफरमा बरदारी करते हैं। अल्लाह इनके गुनाहों को भी उस मुक़द्दस रात में भी कबूल नहीं करता। मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ गुनाहों का जिक्र किया गया है, मगर मज़मून की तवालत के खौफ से सिर्फ वालिदैन की नाफरमा बरदारी के बारे में कुछ रोशनी डालना चाहते हैं कि वालिदैन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत मत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो इन्हें कभी उफ भी ना कहो और यूं दुआ करो कि ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहमत नाजिल फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में मेरी परवरिश की। बहुत से मुफस्सिरीन के नज़दीक उफ से मुराद ऐसा कलमा कहना जिससे वालिदैन को नागवार गुजरे, यहाँ तक कि वालिदैन की कोई बात सुनकर इस तरह लंबा सांस लेना जिससे नागवारी का इजहार हो। बस वालिदैन से गुफ्तगू करते हुए आजिज़ी और अदब का हर दम लिहाज रखें और जिस तरह ख़ताकार ग़ुलामी, नरमी और लजाहत से बात करता है इस तरह माँ बाप से बातचीत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने वालिदैन के चेहरे पर मोहब्बत से नज़र डाले तो इसको हर निगाह के बदले एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं दिन भर में 100 मरतबा मोहब्बत से अगर मैं मेरे माँ बाप को देखूं, क्या मुझे 100 हज का सवाब मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अगर तुम 100 बार मोहब्बत की नज़र अपने वालिदैन पर डालोगे तो तुम्हें घर बैठे 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। एक और जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। दूसरी जगह फरमाया कि रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है, रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। सच तो यह है कि औलाद अपने वालिदैन की जितनी खिदमत करें उनके एहसानात का हक़ अदा नहीं कर सकती। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, बाप और बेटे की मोहब्बत में कितना फ़र्क है? बुजुर्ग ने फरमाया, जब बेटा बीमार हो या लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो तो बाप उसकी दराजी उम्र के लिए रो रो कर दुआएं करता है। इसके बस में हो तो अपनी बकिया ज़िंदगी के अय्याम अपने बेटे को देकर खुद मौत की आगोश में चला जाता है। लेकिन जब बाप लाइलाज मर्ज में मुब्तला होता है तो बेटा मायूस होकर खुदा से दुआ मांगता है, या अल्लाह मेरे बूढ़े बाप को अपने पास बुला ले। ये तो आज के मुआशरे का हाल है। आइए अब आपके सामने हमारे बुजुर्गान दीन के कुछ सबक आमोज़ वाक़ियात पेश करते हुए जिसको पढ़कर क़ारीन इंशाअल्लाह सबका सबक हासिल कर सकेंगे। एक मरतबा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाए तो वो इस्तक़बाल के लिए खड़े ना हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आपने अपने वालिद के अदब में कमी की, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं आइंदा तुम्हारी औलाद को नबी पैदा नहीं करूँगा। ये वाक़िया सबक हासिल करने के लिए काफ़ी है
حضرت باयजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने जो भी मरातिब अता किए वो मेरी वालिदा की दुआओं का सदका है। किसी ने पूछा वो कैसे? हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बचपन में एक मरतबा रात में वालिदा ने मुझसे पानी मांगा। जब तक मैं पानी लेकर आया वालिदा सो चुकी थी। मैं प्याला हाथ में लेकर सारी रात खड़ा रहा। सर्दी इतनी थी कि सारा जिस्म कपकपा रहा था। जब वालिदा की आँख खुली और इन्होंने मुझे यूं पानी लिए खड़े इंतज़ार करते देखा तो बहुत खुश हुई और बहुत सारी दुआएं दी। इन दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे लिए विलायत के दरवाज़े खोल दिए। बस हमको चाहिए कि वालिदैन की खिदमत में कोताही ना करें, दिल से इनकी खिदमत करें, दुनिया व आखिरी नेमतें हासिल करें। इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और गुज़रे हुए गुनाहों की तौबा करें और एक नेक इंसान बनने की कोशिश करें। ये इतनी मुबारक रात है कि इस रात को इस साल पैदा होने वाले और मरने वालों के नाम का फैसला हो जाता है। इस रात को किसी को कितनी रोज़ी मिलेगी और तमाम साल रूनुमा होने वाले वाक़ियात को अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों के हवाले कर देता है जो इन पर मामूर रहते हैं और गुज़रे हुए साल का अमाल नामा महफूज कर दिया जाता है जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएगा। इसलिए हमको चाहिए कि इस मुक़द्दस रात का इस्तक़बाल करते हुए रोज़े रखें, गरीबों की इमदाद करें, ज़िक्र व अस्कार करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, जो फ़र्ज़ नमाज़ें हमसे छूट गई इनकी क़ज़ा नमाज अदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात जन्नतुल बक़ी जाकर अपने अजीज़ों के लिए दुआए मग़फ़िरत तलब करते थे, तो हमको भी चाहिए कि इस रात को हज़ीरों को जाकर बुज़ुर्गान दीन से फ़ैज़ हासिल करें और अपने रिश्तेदारों और लवाहिकीन की क़ब्रों पर जाकर मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ करें और इबरत हासिल करें कि कैसे कैसे लोग इस मनो मिट्टी के नीचे अपने क़ब्रों में आराम फरमा रहे हैं, अज़ाब में मुब्तला हैं। आपकी एक वक्त फ़ातिहा के मुंतज़र है ताकि इनका अज़ाब कुछ कम हो। यही वक्त है कि अपने अमाल का मुहासिबा करें और ये फ़ानी दुनिया की मोहब्बत को ठोकर मार कर अल्लाह रसूल और मेहदी सलाम के बताए हुए रास्ते पर गामज़न होकर अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और बुराइयों के रास्ते को तर्क करके अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें और शरीयत की पाबंदी करते हुए अपने असलाफ़ के तरीक़े पर चलने की कोशिश करें और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के अहकाम पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें। इस रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमल करते थे इनमें चंद एक अर्ज़ करते हैं कि इस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत करते थे और अपने उम्मतियों की बख्शिश के लिए दुआएं करते थे और ख़ास तौर पर सूरह तौबा, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 14 मरतबा पढ़ा करते थे। हमको भी चाहिए कि इस रात हज़ीरों को जाएं, कुरान शरीफ की तिलावत घर में करें, जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं वो अदा करें, ज़िक्र व अस्कार करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के लिए सजदे में जाकर रो रो कर दुआएं करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में दुआएं करते थे, ये भी दुआ करते थे। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी यही दुआ सिखाई थी जिसका तर्जुमा यह है कि मैं तेरे अफ़ू के साथ तेरे अज़ाब से पनाह चाहता हूँ, तेरी रज़ा के साथ तेरे गज़ब से पनाह चाहता हूँ, तेरे करम के साथ तेरे अज़ाब से पनाह चाहता हूँ। मैं कमा हक़ा तेरी तारीफ़ नहीं कर सकता, तो ऐसा ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ़ करी। इस मुतबर्रिक रात को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की कोशिश करना चाहिए और गुनाहों में मुब्तला नहीं होना चाहिए। बाज़ नाशऊर लोग इस रात आतिशबाजी, गाने बजाने, होटलों चौराहों पर दोस्तों के साथ बैठकर लोगों की ग़ीबतें, झूठ, दिल आज़ारी, हंसी मजाक न जाने किन किन गुनाहों में मशगूल रहते हैं। इससे बेहतर है कि इबादत नहीं कर सकते तो घरों को जाकर सो जाएं ताकि गुनाहों से तो महफूज रहेंगे। कौम मेहदविया में शब बारात के ताल्लुक़ से कोई मखसूस इबादत का तसव्वुर नहीं। इसकी वजह यह है कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम और इनके खुलाफा व सहाबा के लिए हर रात शब बारात व शब क़दर जैसी थी। वो लोग कभी भी वक्त गाफिल दुनिया में नहीं रहते थे। वो तो 8 पहर शरीयत की पाबंदी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमली जामा पहना कर नमाज़ों, ज़िक्र अस्कार में मसरूफ़ रहते थे। इसलिए उन लोगों के लिए शब बारात इबादत के लिए मखसूस नहीं थी, मगर हमारे लिए सिर्फ 2 या 3 रातें मखसूस हो गई हैं जिसमें हम रियाकारी से भरपूर इबादत करते हैं, नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला पर एहसान करते हैं। हमें फ़राइज़ और वाजिबात का इल्म है, न हराम और हलाल की तमीज़ किसी भी तरह दौलत
दौलत जमा हो जाए, ऐशो इशरत की ज़िंदगी में मैसर हो जाए, चाहे इसके लिए किसी का खून करना पड़े, रिश्वत लेना पड़े, सूद लेना पड़े, मजबूर और मोहताजों का हक मारना पड़े, किसी भी कीमत पर दौलत होनी चाहिए। जब इन हराम ज़राए से दौलत इकट्ठा करेंगे तो औलाद कहाँ से फर्माबरदार और नेक होगी। जिसके जिस्म में एक निवाला हराम का पहुँचा तो उसकी 40 दिन की दुआ कबूल नहीं होती, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। फिर क्यों हम अल्लाह ताला पर एतराज़ करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। खुदारा ये दुनिया जमा करना छोड़ें, आखिरत की तैयारी करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को मरी हुई भीड़ से बदतर करार दिया है, फिर भी हम इसके पीछे लगे हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ तमाम मुसलमानों, ख़ासकर तमाम मेहदवियों को इस रात की बरकत से तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके हमारी मग़फ़िरत अता फरमा, गुनाहों की आदत हमसे दूर फरमाएँ और नेकियों के रास्ते पर गामज़ान करते हुए 5 वक्त की नमाज़ें तकबीर उला के साथ पहली सफ़ में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, हराम चीज़ों से महफूज रखने की तौफ़ीक़ दे, शरीयत पर चलाते हुए नेक अमल की बरकत से हर गुनाह, हर बुराई, हर बीमारी से महफूज रखे, झूठ, चुगली, गैबत, हसद, तकब्बुर से महफूज रखे, ख़ास कर सूद की जो वबा फैली है इससे हर किसी को दूर रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सूद के 70 को 2 दरवाजे हैं, इनमें सबसे कम ऐसा है जैसे अपनी माँ से जिना करना, और सूद का 1 दिरहम 30 जिना के मानिंद है। सिर्फ सूद लेना ही हराम नहीं बल्कि सूद देना और इसके बारे में लिखना भी मना फरमाया है। अल्लाह हम तमाम को इन तमाम गुनाहों से महफूज रखते हुए दीदार खुदा के साथ ईमान पर ख़ातिमा बिल खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान व अक़ीदे को मजबूत करते हुए हमको सच्चा पक्का सही मानों में मेहदवी बनकर सही बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।